Write down. Note number 1. Horizontal axis is called x-axis. Horizontal axis is called x-axis. Why you sitting here? मैं बता रही हूँ. ये देख, if लिखो फिर. कहाँ है फेयर नोटबुक आपकी? इज इट फेयर? हाँ जी, इंपॉर्टेंट नोट जो है दैट यू विल राइट डायरेक्टली इन द फेयर. नहीं तो आप लिखोगे नहीं, फिर रह जाएगा. Horizontal axis is called x-axis. Vertical axis is called y-axis. If x coordinate and y coordinate are both non-zero, then the point x, y जिसे आप पॉइंट कहते हो, जिसे आप ऑर्डर्ड पेयर कहते हो, जिसे आप कोऑर्डिनेट्स कहते हो, that will lie where it will lie? In the quadrant. And if one of them is 0, then it will lie on the x-axis, on y-axis. That will depend upon the point which value is 0. That we will write in the next point. I have written if x coordinate and y coordinate are both non-zero, then the point x, y lie where? In the quadrant. In the quadrant. Be careful while writing the spelling of the words. If x coordinate, Anji, इधर से ये गुरदीप, if x coordinate is 0, then point will lie, yes, रजत कहाँ लाई करेगा? If x coordinate is 0, where does the point lie? Abhishek, on which line? If x coordinate is 0, yes Matangi, if x coordinate is 0, then the point will lie on y-axis, not quadrant. It will lie on y-axis. Is it okay? Next is if y coordinate, Anji इधर से, if y coordinate, आप बोलो बच्चे, if y coordinate is 0, then point will lie on x-axis. Is it okay? Clear? Next is, this is new for you, equation of x-axis
is, yes, can anybody tell? Equation of x-axis is, if we talk about simply x-axis, it has 1, 2 different values. X has different value, but y is on x-axis. What will happen? x-axis पे y क्या होता है? x-axis पे y की वैल्यू क्या होती है? तो यही इक्वेशन है, y इक्वल टू 0. x की वैल्यूज तो चेंज हो रही हैं, बट y here is fixed. Got it? तभी तो हमने लिखा है if x coordinate is 0, then the point will lie on y axis, and if y coordinate is 0, y coordinate का मतलब है if y is 0, then point will lie on x axis. And now we are talking conversely about x axis. This is your x axis. बाद में तो उसके बिना क्या लिखा नहीं जाएगा, फिर आराम से बैठो. If the point lie on x axis, x has different values, but here y is fixed, that is 0. ये लिखा है ना, y coordinate is 0. So that is the equation of x axis. Nothing new is there, but the way of asking the question is different. Equation of x axis is y equal to 0. What about equation of y axis? X equals to 0. So write similarly the next point. हाँ जी, equation of y axis is x equal to 0, and make sure you are writing x as capital X. Actually, it represents all the values of y, so that's why we are writing it as capital Y. Got it? Written? कहाँ पे? वो कोऑर्डिनेट है, ये इक्वेशन का नेम है, दैट इज डिफरेंट. मैंने यहाँ लिखा नहीं एक्स एक्सिस, तो ये वो वाले वाई की बात कर रहे हैं, तो कैपिटल ये है. वो क्या है, इस पॉइंट का इसकी बात कर रहे हैं एक्स, और ये वाई कौन सा है, ये इसकी बात कर रहे हैं. तो कोऑर्डिनेट में स्मॉल आएगा, बट फॉर द एक्सिस इट शुड बी कैपिटल. वन मोर थिंग, कैन यू टेल मी द any general point on x-axis? Any general point on x-axis? General point I am asking. अब सुनो, x-axis के ऊपर क्या होता है, x तो different है but y is 0. तो इस point का नेम क्या है, 1 0. इसका नेम क्या है, इसका नेम क्या है, but I am asking general point, so it will be x, 0. x can be any value. Got it? आपसे कोई पूछे, सुनो इधर, अगर आपसे कोई पूछे write any point on x-axis, तो you can write any point, -10 0, -5 0, 0 0, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0. These are the points. But I am asking general point. General means जैसे आप किसी चीज का जनरल फॉर्मूला लिखते हो, तो जनरल में क्या लिखते हैं, n लिखते हैं, x y लेते हैं ना चीजों को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x, 0. What is this? Write down next point. 8th point. ये देख लो, ये पूछ रहा है 7th point कौन सा है. मैंने बोला था कि नहीं, क्या लिखना है, क्या लिखना है बताओ. प्रभशरण बताएगी. प्रभशरण बोलो जरा, क्या बोला था. Equation of y-axis is x equal to 0, and x should be capital X. Write down next point. Any general point, any general point on x-axis is of the form x, 0. Got it? Any doubt? Why I have written 0 here?
because on y-axis we have on x-axis we have y equal to 0. What will be the next point? इसी में लिख देते हैं, इसी के साथ लिख दें। किसमें? ये इसकी बात कर रहे हो आप? एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू तो चेंज हो रही है ना, तो इसलिए एक्स आ गया, लेकिन वाई 0 होता है। अभी वो लिखने लगे हैं। एनी जनरल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म दिस, एंड ऑन वाई एक्सिस is of the form 0, y, because on y axis x is 0 and x always written at the first place, so it will be 0, y. Clear? ठीक है, किसी को ये डाउट तो नहीं है कि y 0 आना चाहिए? ईशान डाउट है? हाँ जी, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है, and in the ordered pair x is always written first and y is written at the second place. So we are talking about y axis. So on y axis you have different values of y. So y I have written and x will be 0. So x I have written as 0. Got it? अब हो सकता है 4 ऑप्शंस दिए हो, उसमें से टिक करना हो कि कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, तो कौन सा लाई करेगा जिसमें y वाला 0 होगा। जैसे आई एम राइटिंग वन एग्जांपल, सपोज आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। सो द पॉइंट विच लाई ऑन एक्स एक्सिस इज, एंड द पॉइंट विच लाई ऑन वाई एक्सिस इज, ठीक है। एक्स एक्सिस में y वाला 0 होना चाहिए, y में x वाला 0 होना चाहिए, ठीक है। एंड वेयर डज दिस पॉइंट लाई? In the quadrant, not on the quadrant. It will be in the quadrant. Which quadrant? Actually, both are positive, so it will lie in the. If both are negative, did you remember that in case? हाँ जी, कौन सा? जो पहले लिखा था वो था, अभी तो मैंने चेंज कर दिया ना। Actually, in case of the quadrant, this quadrant is plus plus. माइनस माइनस, यहाँ x माइनस, ठीक है। सो बी केयरफुल अबाउट द साइन, इट कैन बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन दैट इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट इज लाइंग, या वेयर डज द पॉइंट लाई, तो इट विल ईदर लाई, यस ये भी आ सकता है, वेयर डज द पॉइंट लाई, इट विल लाई इन द क्वाड्रेंट और ऑन द एक्सिस, और बोथ वाली ऑप्शन होगी तो कौन सा आएगा? बोथ। तो पॉइंट तो कहीं पे भी लाई कर सकता है। अगर कोई पॉइंट दिया नहीं हुआ, जनरल आपसे पूछ रहा है कि कोई पॉइंट x, y है, वो कहाँ लाई कर सकता है? इट कैन लाई इन द क्वाड्रेंट, नीचे रख, और इट कैन लाई ऑन द एक्सिस, ठीक है। अगर कुछ नहीं कहा तो कहीं पे भी आ सकता है पॉइंट। लेकिन अगर ये कहा हो कि किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है, तो तनीषा कहाँ लाई करेगा? अगर किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा? क्वाड्रेंट में कि एक्सिस के ऊपर? कौन से एक्सिस पे? If the point has x coordinate 0, then it will lie on y axis, and if y coordinate is 0, then the point will lie. आपने जो बोला है, मैंने अभी यहाँ लिखा है कि अगर पॉइंट नॉन जीरो है, नॉन जीरो मतलब 0 को छोड़ के कोई और वैल्यू है, तो वो क्वाड्रेंट में लाई करता है। लेकिन अगर कोई वैल्यू 0 है, x 0 है तो y पे, y 0 है तो x एक्सिस। आपने सुना ही नहीं इसका मतलब। चलो, लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। ये जो पॉइंट्स वाला है, ये इसको यहीं पे छोड़ दो, इसके लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना। अगर कुछ ऐड ऑन होगा तो मैं आपको ऐड करवा दूंगी इसमें, नहीं तो नोट दोबारा बनाना पड़ेगा, वो नहीं मैं चाहती। आप इसी में ऐड ऑन करना कुछ, अगर एडिशन होगी तो। अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो डिस्टर्बेंस है इसे बंद करो। Exercise 15.3. Again, we need graph for this. Do you have graph? Take out the sheets. Firstly,
I am making this graph on the board, then you will copy it. ठीक है, पहले सुनते जाओ इधर. पेंसिल है? Question number 1. This horizontal axis is called, vertical axis is called. जब मैं बोल रही हूं तब कोई और काम नहीं करना, मुझे सुनना है इधर सिर्फ. This horizontal axis I have written as x because its name is x-axis. Vertical axis is always called y. नोट में ऐड करो, एक और याद आ गया. लिखो 10th point, लिखो the point of intersection. Write down 10th. अच्छा आपने अलग लिखा है, ठीक है, बाकी 9th लिख लो. 9th point is the point of intersection. The point of intersection, INTERSECTION. The point of intersection of x-axis. How you will write x-axis? ऐसे. हाँ जी. And y-axis is called, what does it called? Origin. The point of intersection of x-axis and y-axis is called origin. Yes, Rajat, what are the coordinates of origin? एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एक्स एक्सिस. अब छोटे वाले जो 1 2 3 वैल्यूज होती है वो स्मॉल एक्स को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन पूरे का नाम है तो कैपिटल में लिखेंगे. आप अपना नेम लिखते हो कैपिटल में लिखते हो ना, क्यों? क्योंकि आप इतने बड़े हो. ठीक है, ऐसी एक्सिस भी पूरा बहुत बड़ा है, उस पे इनफाइनाइट नंबर्स आ रहे हैं, तो कैपिटल से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जैसे इंटीजर्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से करते हैं. स्मॉल एन से भी तो कर सकते हैं, बट इसकी वैल्यू कुछ और है, इसका मीनिंग कुछ और है. ये तो नंबर ऑफ स्मॉल एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टर्म्स, बट कैपिटल एन इज रिप्रेजेंटिंग द होल सिस्टम ऑफ नेचुरल नंबर. सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इट एज कैपिटल. हाँ जी बोलो. 0,0 आपने लिखा है. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन. ओरिजिन के आगे लिखना है O 0,0. रजत नेक्स्ट टाइम आंसर आने चाहिए. नहीं आता मुझसे साथ ही पूछो क्या डाउट है आपको, लेकिन आंसर जरूर आने चाहिए. और जो आज लिखवाया है ये थॉरली रिवाइज करके आना कल. मुझे इतना पता है कि ये हम कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं 3-4 डेज से यही टॉपिक, उसके बाद भी आंसर नहीं आ रहे. अब तो टिप्स पे होनी चाहिए ये चीजें, आपकी तरफ से आंसर आना चाहिए, मुझे थोड़ी बताना चाहिए. उल्टा आप एक्सप्लेन करो यहाँ आके आपने क्या क्या सीखा है अभी. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अब सबकी टर्न आएगी और आप बताओगे यहाँ आके जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे. एक और बात, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, ये एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर. क्या है ये भी आ सकता है कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज मेकिंग विच एंगल 90 डिग्री, या दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, ये भी लिख लेंगे, लिख लो. राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस are perpendicular to each other and is making 90 degree, and is making 90 degree where? At origin, and it is making 90 degree to each other and are making 90 degree at origin, and are making 90 degree at origin. Origin को आप O लिख सकते हो. ठीक है, that is again the standard form. ठीक, हाँ origin. हाँ जी. Now the point of intersection of x-axis and y-axis, you have learned it as origin, so I have written O. Now in the first question you have given the number of apples that are 1 2 3 4 5. So you will write number, stop writing and listen to me. Number of apples 1
2, 3, 4. Actually, bar graph, histogram, and pie chart you have already done in the chapter. In which chapter you have learned that? So this chapter is all about making your linear graph, that is known as line graph. So wherever it is written, draw the graph, that means they are talking about linear graph. They are not talking about bar graph, histogram, and anything else. So this chapter is all about linear graph, that is line graph. ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में सिर्फ बार ग्राफ का एक ही क्वेश्चन किया था, तो इसलिए मैंने आपको बाकी सारे अभी लीनियर ही ग्राफ बनाए हैं. तो अब हम जितने भी ग्राफ करेंगे, रिलेशनशिप ग्राफ किसी भी चीज का, प्राइस के साथ किसी चीज के कॉस्ट, कुछ भी ऐसे नंबर, क्वांटिटी के साथ उसकी कॉस्ट, टाइम के साथ डिस्टेंस, ईयर के साथ डिस्टेंस, कुछ भी, मतलब कोई भी वैल्यू आप लेते हो, सिंपल इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल का लेते हो, इंटरेस्ट के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल का लेते हो, कोई भी टॉपिक आप लोगे तो इस चैप्टर में हम सिर्फ बात करेंगे लीनियर ग्राफ की. तो आपने कोई और ग्राफ नहीं बनाना, लिखा है या नहीं लिखा, दैट मींस यू हैव टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ. रिलेशनशिप ग्राफ में हमेशा लीनियर ग्राफ आएंगे. तो अब हम यहाँ रिलेशन कर रहे हैं नंबर ऑफ एप्पल्स का, मींस क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स का with the cost, and the cost of the apples is starting from 5 till 25. So you will write 5. You can take the gap of 10 or you can take gap of 5 here also, because सारे रेगुलर ही हैं. देखो 5, 10, 15, 20, 25 जो भी है रेगुलर है, 5 का गैप चल रहा है. And even moreover, this all numbers are the multiples of 5. So you can take difference of 5, and if you want to take it as a difference of 10, no problem, आप ले सकते हो. ठीक है, 10 तो सबसे बेस्ट है ना, वही लेना चाहिए. वैसे किसी कोई भी बीच वाले नंबर दिए हो उसमें कभी मिस्टेक नहीं होती, लेकिन 5 का लेना चाहो तो ले सकते हो. ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25. किंक नहीं आएगा, 5 का गैप है, 5 का सारे इक्वल गैप है. then why to put the kink? Kink will be used only in case if one irregular gap is there. ये क्या था? So for the number of apple 1, the cost is 5. 1, 5. 1, 5 का मतलब पता है क्या हो गया? x 1 y. इसका कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या बनेगा? 1, 5 x y. ठीक है, लिखना नहीं है, आपके लिए बता रही हूँ. आपसे कोऑर्डिनेट भी पूछ सकता है. अच्छा, एक चीज और नहीं लिखी, एब्सिसा किसको कहते हैं? एक्स एक्सिस को नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट को. पूरे कोऑर्डिनेट में जो पहला होता है जिसको एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं वो एब्सिसा होता है, और बाद वाला ऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट में से को हटा दो, ऑर्डिनेट. गॉट इट? ये भी लिख लेंगे, अभी लिखा नहीं है, पहले शायद लिखवाया था स्टार्टिंग में. बोल मैं रही हूँ, पानी आप पिए जा रहे हो. हाँ जी, सेकंड 2 पे क्या वैल्यू है? 10. अधीश कोऑर्डिनेट क्या बनेगा इसका? ये देखो 2, 10 x 2 y 10. 2, 10. नेक्स्ट इज, पीछे रखो, अगली बार ना वहीं आ जाना, बताना है उसके बाद. 3 के साथ 15, x 3 y 15, x 4 y 20, x 5 y 25, and it will always pass through origin. Why it pass through origin? Not always, but in this case actually आप वो यूनिफॉर्म वाला ग्राफ बनाते हो ना साइंस में, इक्वल इंटरवल में इक्वल चेंज हो रहा है क्वांटिटी. अच्छा देखो इधर 1 को, अच्छा अभी नहीं है, आपको अभी नहीं, आगे आएगा. 1 क्वांटिटी इंक्रीज हुई, 1 के लिए 5. 1 क्वांटिटी इंक्रीज हुई, फिर 5 इंक्रीज. 1 क्वांटिटी इंक्रीज हुई, फिर 5. मतलब इक्वल में यहाँ पर भी इक्वल चेंजेस हो रहे हैं, तो यूनिफॉर्म चेंजेस हो गए ना. मतलब आप सपोज करो आप घर से 60 किलोमीटर की स्पीड से चले दिल्ली जाने के लिए, आप वही 60 की स्पीड से कॉन्टिन्यूस चलते गए, तो अगर 60 की स्पीड से सेम चलते जाओगे तो हर 1 आवर में सेम डिस्टेंस कवर होगा, क्योंकि आप कॉन्टिन्यूस स्पीड से चल रहे हो. तो कॉन्टिन्यूस डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन एवरी आवर. ठीक है, until you haven't stopped anywhere.
ठीक है, तो सेम टाइप का जो ग्राफ होता है, ये जो इसकी वैल्यू क्या है 15, 210, 315, 420, तो इक्वल इक्वल है ना, तो सारी वैल्यूज, तो ये ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ये लाइन ग्राफ बन गया एंड इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. व्हाट अबाउट द स्केल? एक्स एक्सिस के लिए क्या स्केल है? 1 एप्पल. एंड वाई एक्सिस के लिए क्या है? 5 रुपीज. ये आ गई कॉस्ट. चलो लेट्स स्टार्ट इट. टेस्ट कर लो. निकाला तेरा ग्राफ. पेस्ट करना है. पेस्ट कर लो, तब तक आप भी कट करते हो. Second part is your homework. The same question, second part is your homework. First आपने भी कर लिया, second part is your homework. Question number 1 A and B part.